ask to type it down. So after that, please follow my instructions. So in the last sessions, we completed chapter number 1 and chapter number 2. Today we will discuss chapter number 3. I will pass through the chapter very quickly because this is an interactive session, and I will let you guys to ask questions as many as you can. So chapter number 3 is all about plane elasticity theory. Okay, so in this chapter we will solve a complete problem using analytical approach, and you will realize that how difficult it is to solve a simple problem. In the earlier classes, I you guys that applying analytical approach is not complicated, but it's difficult because of the complexity of the boundary conditions, because of the isotropic nature of the material, and because of the lack of mathematical, or you can say no mathematical model of the overall geometry of the object. So I'm repeating the same thing again that I have repeated in earlier classes, that we must have the 15 unknowns at all points to have the complete awareness and of the entire object, and pass a statement that the design is safe or not. And we can solve any problem if we know the geometry of the body, the boundary condition, the body forces, and the elastic properties. If all of these things are well defined, yes, we can solve the problem. And to determine the values of these 15 variables, luckily we have 15 independent equations, and these include the 3 equations of equilibrium, 6 stress, strain, displacement relationships. This you learn in you learn in chapter number 1, and these two set of equations you learn in chapter number 2. So here is a glimpse of the second order partial differential equation. You don't need to drive it. This is I'm showing you just to give awareness that how much the equation is complicated here. Okay, so here you can see apply the strain displacement relationship, and we use this strain displacement relationship in the stress strain relationship, and formulate this thing. So now it is displacement stress relationship. Okay, you can see the displacement is relating with the stress, and using the equilibrium equation, we land up with this set of 3 equation, and here you can see there is no strain and stress here. The entire equation is related to the displacement, and once we know displacement, we can able to calculate the strain very easily, and later applying the stress strain relationship, we can calculate the stresses. So in any problem, it's always good to determine the displacements in the first step. Recall the concept of the final Ehman analysis, in which we first determine the displacements, and then we calculate the strain, and followed by the stress. Issues are these are the issues. We know for the 3D elasticity problem, we have 15 variables, and we must know the boundary condition to obtain the values of the constants that emerge when we solve this higher order differential equations, partial differential equations. So do you guys have any questions so far? Anyone? This is just the background. I'm giving you an overview. I'm very quick. Rafe, are you there? Guys, Yes, sir, I'm there. I'm here. और क्लास में किसी और सेक्शन ई में बताएं कौन है, कोई रिस्पांस करे मुझे? यस सर, जबरदस्त, यहाँ तक क्लियर है? एनालिटिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड जो मैंने स्टेटमेंट्स दिए आप लोगों को. Any questions so far? Okay, so in 3D elastic problem, there is a special class of problem that we called as plane elastic problems. Okay,
in this problem we reduce the number of variables, okay, from 15 to we drop it down to 9 variables, so we don't need to deal with all the variables here. So any problem can be classified as a plain elastic problem if it qualifies certain geometric and certain loading conditions. Okay, what is the condition for the geometry? The object should be bounded between two parallel planes. That's it. If the distance between the two parallel planes is smaller than the rest of the two dimension, then it will the plane stress problem. If the thickness between the two parallel planes is larger, very larger than the rest of the two dimensions of the object, then we will treat that problem as a plane strain problem. Okay, and there are certain conditions for the loading as number one condition is that there should be no load on the parallel plane. Okay, there should be no load on this face and on the face that is on the lower side here. And we are calling this dimension coordinate as the z coordinate. You can call it any x or y as well, but since all the problems are solved by taking these coordinate as the z coordinate, so it would be easy for you to follow the same protocol or same solution. So there should be no surface force and body forces in z dimensions. Okay, there can be loading, surface loading in the x and y directions. Okay, तो loading तो होना जरूरी है, नहीं तो stress कैसे apply होगा? External जब तक action नहीं होगा तो reaction नहीं होगा, तो फिर वो stress analysis का problem नहीं रहेगा. So yes, there can be load in the x and y dimension. So what is the condition is that be non-varying throughout the thickness. अगर आप tx को देखें, it is non-varying from lower boundary to the upper boundary. And Ty can be different than the Tx. Ty can be different. The external loading in the y direction be different compared to the x direction, but the same condition will apply that it should be non-varying from the lower boundary to the upper boundary. ठीक है जनाब, चले यहाँ पे देखिए प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम है, प्लेन स्ट्रेन प्रॉब्लम लिखा हुआ है. यहाँ पे थिकनेस जो है ना रेस्ट ऑफ द टू डायमेंशन से जो है वो कम है, तो we will solve this problem as a plane stress problem. Otherwise we will solve that problem as a plane strain problem. If the thickness, if the distance between the two parallel planes on which no loading is larger than the rest of the two dimension, then we will call as a plane. We will solve this problem plane strain problem. अच्छा जी, स्ट्रेस प्रॉब्लम में हम अजम्पशन क्या कहते हैं कि सिग्मा zz वुड बी इक्वल टू द tau yz एंड वुड बी इक्वल टू tau zx इक्वल्स टू 0. इस कंडीशन को समझना जरूरी है. ठीक है, ये कंडीशन कैसे, ये कंडीशन इस तरह से आई है कि यहाँ पे अगर आप इस फिगर को देखें तो सरफेस पे कोई लोडिंग है, एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, तो सरफेस पे जो मटेरियल होगा वहां पे भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. जब कोई एक्शन नहीं है तो सरफेस पे जो मटेरियल है वो कोई रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा इन जेड डायमेंशन, इन जेड डायरेक्शन. ठीक है, यहाँ पे सरफेस पे कोई एक्शन नहीं है तो सरफेस पे जो मटेरियल है वो कोई रिएक्शन ऑफर नहीं करेगा, और सिर्फ ये सरफेस के मटेरियल की बात हो रही है. ठीक है, और ये जेड डायमेंशन में बात हो रही है. तो सिग्मा जेड जेड प्लस tau yz एज वेल एज tau zx, कोई शेयर लोड भी नहीं है, कोई नॉर्मल लोड भी नहीं है. ठीक है, so there would be zero stresses on the face that is in the z direction on both faces, upper boundary and the lower boundary. ठीक है, इनके दरमियान में जो मटेरियल है, इन दोनों फेसेस के दरमियान में जो मटेरियल है, यहाँ पे स्ट्रेसेस हो सकते हैं. ठीक है, देयर कैन बी स्ट्रेसेस इन द मिडिल ऑफ द टू फेसेस. ये स्ट्रेसेस कैसे क्यों हो सकते हैं? क्योंकि स्ट्रेन है यहाँ पे, पोसॉन इफेक्ट है, तो उसकी वजह से z डायमेंशन में, z डायरेक्शन में जो है वो स्ट्रेसेस हो सकते हैं इन बिटवीन दीज टू अपर एंड लोअर बाउंड्रीज. अब क्योंकि ये थिकनेस बहुत कम है, ये जो थिकनेस है इस प्लेन और इस प्लेन के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, तो स्ट्रेसेस की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी और ये हो सकता है किसी सर्टेन लेवल तक जाए और फिर इसको दोबारा इसको 0 होना है दूसरी बाउंड्री पे आने के लिए. तो हम यहाँ पे अज्यूम कर सकते हैं कि सिंस द थिकनेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स ऑन विच देयर इज जीरो लोडिंग इज नॉट लार्ज
or is very small compared to the rest of the two dimensions. So we can assume or we can approximate, not assume, we can approximate that the stresses in the z dimension is not only zero on the surface, but these are zero in between the material, in between these two faces as well. यानी कि थ्रू आउट द थिकनेस हमने हर पॉइंट पे अज्यूम कर लिया दैट डायमेंशन में स्ट्रेसेस नहीं है. तो हर पॉइंट पे तीन वेरिएबल तो स्ट्रेट कम हो गए. ठीक है, यहां से आप देख सकते हैं तीन वेरिएबल्स हर पॉइंट पे खत्म हो गए. हमने अप्रोक्सीमेट किया है, अजम्पशन नहीं किया है. सरफेस पे तो एक्चुअली है, दोनों बाउंड्रीज पे ये कंडीशन जो है वो मौजूद है. हम अज्यूम नहीं कर रहे हैं बाउंड्रीज पे, हम अप्रोक्सीमेट जो कर रहे हैं वो विद इन द मटीरियल कर रहे हैं. ठीक है, खैर बहरहाल इसको स्टार्ट किया और फाइनली वी लैंड अप विद दिस कंडीशन. ओके, दिस कॉल्ड एज द स्ट्रेस कंपैटिबिलिटी इक्वेशन. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो फिर हम इस प्रॉब्लम को एरीज स्ट्रेस फंक्शन यानी इस प्रॉब्लम को फर्दर सॉल्व करेंगे. अदरवाइज वी विल स्टॉप एट दिस कंडीशन. ठीक है, we cannot solve the problem if this condition is not satisfied. This is called as the Laplacian operator. और ये Laplacian इस Laplacian operator को एक्सपेंड करेंगे तो ये चीज बनती है. ठीक है, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? Can you am I audible? Yes sir. Yes sir. Is my voice quality? Good sir. Sir, good. जबरदस्त. कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें. ये स्ट्रेस एनालिसिस का सेंट्रल आइडिया है. चैप्टर 1 ने कॉन्सेप्ट दिए थे स्ट्रेस के, चैप्टर 2 ने स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट दिया था आपको, फिर चैप्टर 2 के एंड पे आपको स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप बताए गए थे. नाउ दिस इज द रियल एसेंस और दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेस प्रॉब्लम. ठीक है, ये एनालिटिकल अप्रोच है. फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल अप्रोच पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल अप्रोच आप लोगों को पहले ही क्लासेस में बता दी गई है एफए की. तो इस पूरे चैप्टर की सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे आपको लोगों के. न्यूमेरिकल अप्रोच, एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच. अच्छा जी, प्लेन स्ट्रेन अप्रोच. प्लेन स्ट्रेन अप्रोच में इस कंडीशन को समझना जरूरी है. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन फॉर द प्लेन स्ट्रेन अप्रोच. अच्छा, प्लेन स्ट्रेन अप्रोच की कंडीशन क्या है कि जो between the parallel planes, और ये कौन सी पैरेलल प्लेन्स की बात हो रही है? जिन पे एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है. ठीक है, ये उस थिकनेस की बात हो रही है. ये जो टी है थिकनेस, इट इज द थिकनेस बिटवीन द टू पैरेलल प्लेन्स दैट हैव जीरो एक्सटर्नल लोडिंग. ठीक है, सरफेस नहीं है और उस डायमेंशन में, उस डायरेक्शन में जो है बॉडी फोर्सेस भी नहीं है. ठीक है, उस थिकनेस की बात हो रही है. अगर वो थिकनेस रेस्ट ऑफ द टू डायमेंशन से बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वी कैन अज्यूम एंड वी कैन अप्रोक्सीमेट ज्यादा सही वर्ड है, अप्रोक्सीमेट दैट थ्रू आउट द थिकनेस ये तीनों वेरिएबल्स जीरो हैं. अब ये ऐसे जीरो क्यों है? ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में. ठीक है, तो जीरो इस वजह से है कि जीरो इस वजह से है कि देखें भाई, अब इसको समझने के लिए वापस डायग्राम पे चले जाते हैं. डायग्राम पे चले डायग्राम पे देखें आप जरा थिकनेस देखें. हमने कहा यह था कि इन दोनों बाउंड्रीज के दरमियान में अगर थिकनेस बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो हम ऐसे प्रॉब्लम को प्लेन स्ट्रेन अप्रोच से सॉल्व करेंगे. ठीक है, अच्छा जी, पहले तो ये बताएं कोई डायरेक्ट लोडिंग नहीं तो कोई डायरेक्ट डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी. ठीक है, जेड डायमेंशन में कोई डायरेक्ट लोडिंग नहीं है and there would be no direct deformation, there would be no change of the dimension because of the direct loading. ठीक है, whatever we have the change of dimension in the z direction would be because of the Poisson effect. ठीक है, lateral boundaries पे एक्शन है, सो उसकी वजह से z डायमेंशन चेंज होगी. ठीक है, तो ये इफेक्ट बताएंगे, ये जो डिफॉर्मेशन का इफेक्ट है ये बहुत ज्यादा होगा या जो है ना वो बहुत कम होगा? एनीवन कैन कमेंट? रिपीट द क्वेश्चन.
The question is there is no direct loading in the Z dimension. So whatever we have the deformation, whatever we have the change of the dimension in the Z, it's because of the loading in the on the lateral boundaries. Okay. So can someone comment that this deformation would be larger than the deformation is in X or Y, or smaller? Smaller. और उसकी बुनियादी वजह ये इनडायरेक्ट डिफॉर्मेशन है बिकॉज ऑफ द पोसॉन इफेक्ट. ठीक है, जब एक्स और वाई डायमेंशन में लोडिंग, उसकी वजह से ये डायमेंशन जो है चेंज हो सकती है बिकॉज ऑफ द पोसॉन इफेक्ट, जिसको आप लोग पॉइजन इफेक्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो एक तो ये वजह है कि ये डिफॉर्मेशन कम है. दूसरी वजह क्या है जिसकी वजह से हम एप्सिलॉन जीरो ले रहे हैं, वो ये है कि ये वाली जो डायमेंशन है ये बहुत ज्यादा होगी, तो हम उस प्रॉब्लम को प्लेन स्ट्रेन अप्रोच से सॉल्व करेंगे. तो डिफॉर्मेशन भी कम है, इनिशियल डायमेंशन भी, सो वी विल कॉल दैट द एप्सिलॉन जेड. स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. नाउ चेंज इन लेंथ इज वेरी स्मॉल and original length is very large, so we can assume that this is zero throughout the thickness. हर पॉइंट पे एप्सिलॉन जेड जो है, गामा वाई जेड और गामा जेड एक्स जो है वो जीरो है. ठीक है, अब क्योंकि शेयर लोडिंग में नहीं है तो शेयर डिफॉर्मेशन भी नहीं होगी. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन तो प्लेन स्ट्रेस में भी अप्लाई हो सकती है. ठीक है, सरफेस पे कोई शेयर लोडिंग है? नहीं है. लेटरल बाउंड्रीज पे क्या नॉन वेरिंग लोड है? नहीं है. तो देयर वुड बी नो चेंज ऑफ द शेप. So that's why gamma yz is equals to gamma zx, and these all three variables would be equals to 0 at all points. ठीक है चने जी, इस कंडीशन को स्टार्ट किया तो we let this stress compatibility equation. ठीक है, डेरिवेशन एग्जैक्ट नहीं आएगी लेकिन इसको समझ लेना जरूरी है. तो ये कंडीशन वी विल ऑब्टेन दिस कंडीशन. ठीक है, अच्छा जी, ऑन द राइट हैंड साइड यहाँ पे किसकी बात हो रही है? बॉडी फोर्सेस की बात हो रही है. ठीक है, प्लेन स्ट्रेस स्ट्रेन अप्रोच में भी ऐसे ही है और प्लेन स्ट्रेस अप्रोच में भी ऐसे ही. ऑन द राइट साइड यू विल सी दैट देयर आर बॉडी फोर्सेस. ओके, सो अगर बॉडी फोर्सेस जीरो है, अगर हम बॉडी फोर्सेस अज्यूम कर लेते हैं कि नेग्लिजिबल है, कम है, तो वी कैन इग्नोर दीज टर्म्स. ठीक है, तो दो कंडीशन जो है वो फिर एक जैसी ही हो जाती हैं अगर बॉडी फोर्सेस नहीं है. हाँ जी बताइए, क्वेश्चन पूछे. अच्छा, प्लीज टर्न ऑफ योर माइक. टर्न ऑफ योर माइक प्लीज. स्ट्रेस फंक्शन, ठीक है, जिसको मैं अक्सर कहता हूँ हवाई फंक्शन. ठीक है, तो ये एरीज जो है ना वो मैथमेटिशियन का नाम था, एरी, तो वो एरीज स्ट्रेस फंक्शन बन गया. तो व्हाट इज स्ट्रेस फंक्शन? rather than solving each of these functions separately, sigma xx, sigma yy and tau xy separately, we formulate a combined function and we call it as Airy's stress function. ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस आपको जब प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे तब नजर आएगी. तीनों बाउंड्री कंडीशंस को मिला के एरीज स्ट्रेस फंक्शन मिलाते हैं तो हमें एक दूसरे से जो है वो सपोर्ट मिलती है एरीज स्ट्रेस फंक्शन को सही तरह फॉर्मुलेट करने में. अगर हम इंडिपेंडेंटली सिग्मा वाई वाई और टॉ एक्स वाई का फंक्शन बनाएंगे तो वी कैन नॉट एबल टू फॉर्मुलेट दी फंक्शंस एक्यूरेटली. अच्छा जी, ये एरीज स्ट्रेस फंक्शन जो है ना वो 5 से यूजुअली बुक्स में डिनोट किया जाता है. ये जो है ना वेरी लेटर डिफरेंट भी हो सकता है. ठीक, कुछ बुक में साई भी मैंने देखा है लेटर. तो इसमें इस एरीज, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री फंक्शंस. ओके, इसमें सिग्मा एक्स इंक्लूडेड है, सिग्मा टॉ एक्स वाई भी इंक्लूडेड है और सिग्मा वाई वाई भी इंक्लूडेड है. अब इन तीनों फंक्शंस को हमने सेपरेट करना है एरीज फंक्शन से. तो वो कैसे कर सकेंगे? वो हम वी विल यूज दीज सेपरेशन रूल्स. ठीक है, ये कहाँ से आए हैं? ये बेसिकली ड्राइव हुए हैं फ्रॉम ऑब्जर्विंग दी
इक्विलिब्रियम कंडीशन, ठीक है। देखिए सिस्टम तो इक्विलिब्रियम में है, तभी तो हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, और इसको सेटिस्फाई करने के लिए जरूरी है कि एरीज फंक्शन से ये फंक्शन इसी तरह ही सेपरेट हों। अब जरा इन वैल्यूज को इस फंक्शन में प्लेस कर दें, तो जब यहाँ इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस करेंगे तो दिस विल टर्न आउट टू बी डिफरेंशियल ऑफ एरीज स्ट्रेस फंक्शन with respect to x and 2 times with respect to y, and this would be equals to minus of differential of Airy's stress function with respect to x and 2 times with respect to y. So this these terms would be cancelled out and the equilibrium condition would be satisfied. Same with here. Okay, तो ये Airy's function से ये सिर्फ यही तरीका है तीनों functions को अलग करने का, ठीक है। अच्छा जी, ये ऊपर वाली कंडीशन थी फॉर प्लेन प्रॉब्लम, बोथ फॉर प्लेन स्ट्रेस एंड प्लेन स्ट्रेन दिस वुड बी द कंडीशन, ठीक है। यहाँ पे हमने सिग्मा एक्स की और सिग्मा की वैल्यू प्लेस कर दी, तो हमारे पास स्ट्रेस कॉम्पेटिबिलिटी इक्वेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ एरी फंक्शन, ठीक है। दिस इज अ बाय हार्मोनिक इक्वेशन, और इसको हम जो है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दिस इज वन ऑफ द मेथड वे ऑफ राइटिंग द बाय हार्मोनिक इक्वेशन, एंड दिस इज अनदर वे ऑफ राइटिंग द बाय हार्मोनिक इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे कुछ कंडीशंस बताई हुई हैं, ये रिकॉर्डिंग में बहुत अच्छे से मैंने आपको एक्सप्लेन की हुई है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ, आई वांट टू गिव यू एटलीस्ट 15 मिनट्स एनी क्वेश्चंस। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपने न्यूमेरिकल करवाया था ना, वो उसके शुरू के 3 स्टेप समझाना। किसके प्रॉब्लम, सॉरी दोबारा बताएं सर। ये चैप्टर 3 का आपने इलास्टिक का प्रॉब्लम करवाया था ना लेक्चर 2 में, उसके शुरू के 3 स्टेप समझाना, ये तो इजी है। अच्छा, प्लेन स्ट्रेस प्रॉब्लम में जो फुल प्रॉब्लम है इसका? यस सर, जो आपने रिकॉर्डिंग में समझाया था। ठीक है जबरदस्त। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एरीज स्ट्रेस फंक्शन हमने अज्यूम किया हुआ ये है, ठीक है, लेकिन ये एरीज फंक्शन आता कहाँ से है, तो वो हम एक फुल प्रॉब्लम चेक कर लेते हैं। दिस इज द कंप्लीट प्रॉब्लम, और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम इस कोर्स आउटलाइन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसे कोई 20-25 प्रॉब्लम्स हैं जो एनालिटिकल से सॉल्व हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा एनालिटिकल अप्रोच से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। फिर हम क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम्स कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उनको इन प्रॉब्लम्स इनमें से जो जिन प्रॉब्लम्स का एनालिटिकल सोल्यूशन अवेलेबल है उनसे रिलेट करते हैं, ठीक है, और फिर प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं एनालिटिकली। अदरवाइज फिर हम न्यूमेरिकल की तरफ या एक्सपेरिमेंटल अप्रोच की तरफ जाते हैं अगर बाउंड्री कंडीशंस जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे तो आप बाउंड्री कंडीशन देख है, there is a uniform distributed load of Q. Q is the uniform distributed load, और ये शेयर सपोर्ट है, ये जहन में रखिएगा, लेफ्ट और राइट पे शेयर सपोर्ट है, ठीक है। आप ये समझ लें कि ये जो बीम है ये दो वॉल्स के दरमियान में फंसी हुई है, ठीक है। दिस इज नॉट दी रिजिड सपोर्ट, रिजिड सपोर्ट नहीं है लेफ्ट और राइट पे, ठीक है। अगर रिजिड सपोर्ट होती तो फिर ये जो डिफॉर्मेशन थी उसका फेस जो है वो बेंड नहीं हो सकता था, ठीक है। ये शेयर सपोर्ट है, प्योर shear support in which this face and this face can rotate, ठीक है। तो ये वाले स्टेप्स आप समझना चाह रहे होंगे, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, ऐसा ही है? यस सर। अच्छा, सही है। तो फुल एनालिटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब स्टेप क्या है कि आप मैक्सिमम नंबर ऑफ बाउंड्री कंडीशन लिख लें, जितनी भी बाउंड्रीज हैं, सही है। यहाँ पे कितनी बाउंड्रीज होंगी इस ऑब्जेक्ट में? 6 बाउंड्रीज हैं, ठीक है। अप एंड डाउन 2 बाउंड्री हो गई, लेफ्ट एंड राइट 2 बाउंड्रीज हो गई, और फ्रंट एंड रियर ये 2 बाउंड्रीज हो गई। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सारी की सारी बाउंड्री कंडीशंस लिख लेंगे जो बाउंड्री कंडीशन है। तो नंबर 1 बाउंड्री कंडीशन क्या है कि सिग्मा वाई वाई फेस है और वाई डायरेक्शन है फोर्स की, वो किसके बराबर है? माइनस क्यू। अब जरा दोबारा फिगर की तरफ चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख लें ये वाई फेस है, तो हम टॉप वाले फेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। और टॉप वाले फेस पे फोर्सेस की डायरेक्शन क्या है? वाई, वो भी वाई है, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो दिस इज इक्वल्स टू माइनस क्यू। और ये माइनस क्यू इस वजह से नहीं है कि एक्शन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में, माइनस क्यू इस वजह से है कि सरफेस पे जो मटेरियल है वो कम होगा बिकॉज ऑफ द क्यू,
because of this Q, the material on the surface will compress, and compressive stress would be represented as minus. कोई क्वेश्चन है? यही काम हम लोअर बाउंड्री पे चेक करते हैं. लोअर बाउंड्री पे एक्शन कितना है? नथिंग. तो कितना स्ट्रेस होगा? सरफेस पे जो मटेरियल है, जीरो. नो एक्शन, नो रिएक्शन. और ये किस डायरेक्शन में बात हो रही है? वाई डायरेक्शन में. तो सरफेस पे जो पॉइंट्स हैं, एट ऑल पॉइंट्स सिग्मा वाई वाई would be equals to 0 because सरफेस पे भी बाउंड इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होनी है. और इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपने देखा होगा कि जो है वो एक्शन, वहां पे जो है एक्शन नहीं है, तो यहाँ पे रिएक्शन भी नहीं होगा सरफेस पे जो मटेरियल है. तो ये दो बाउंड्री कंडीशन समझ में आ गई. प्लस h/2 टॉप बाउंड्री माइनस h/2 लोअर बाउंड्री. ठीक है. टॉप बाउंड्री पे एक्शन है, रिएक्शन हो रहा है. ठीक है. लोअर बाउंड्री पे एक्शन नहीं है, तो रिएक्शन भी नहीं है मटेरियल का. अच्छा जी, कोई शेयर लोडिंग है ही नहीं, ना सरफेस, टॉप वाली सरफेस पे, ना ही लोअर सरफेस पे. देयर इज नो shear loading on the top face and on the lower face. So tau xy would be equals to 0 at all points from left to right at the top face and from left to right on the bottom face. अच्छा जी, लेफ्ट और राइट फेस की बात करते हैं. अभी हमने दो बाउंड्रीज तो डिस्कस कर ली. अब जरा लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज भी डिस्कस कर लेते हैं. लेफ्ट की बाउंड्री L/2 और राइट की बाउंड्री L/2. दोनों कंडीशन है, दोनों पे अगर हम टोटल शेयर स्ट्रेस हर पॉइंट के शेयर स्ट्रेस को ऐड कर लें. ठीक है. दिस शेयर स्ट्रेस मे बी डिफरेंट पॉइंट टू पॉइंट. ठीक है. यहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 होगा, टॉ xy 0 होगा, क्योंकि यहाँ पे ये फोर्स 0 है. यहाँ पे भी टॉ xy 0 होगा. ठीक है. देखे ना, यहाँ पे ये टॉ xy इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे 0 है, तो टॉ yx जो इस पॉइंट पे होगा वो 0 होगा, पे भी 0 होगा. ठीक है. तो रिगार्डलेस के टॉ xy कौन सा है, अगर हम सारे टॉ xy को, हर पॉइंट की शेयर रिएक्शन को ऐड कर ले ओवर द एरिया, सो दैट वुड बी इक्वल्स टू द रिएक्शन. और वो रिएक्शन QL/2 होगा. ठीक है. QL/2 क्यों हुआ? मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय 1. ये टोटल सरफेस लोड है. तो आधा लोड एक सपोर्ट की तरफ जाएगा और आधा लोड एक सपोर्ट की तरफ जाएगा. ठीक है. तो ये बाउंड्री कंडीशन क्लियर है? ये थोड़ी सी एडेड है. यस सर. जबरदस्त. मैं प्रोसीड. जबरदस्त. अच्छा जी, अब जरा यहाँ पे चेक कर लेते हैं. ठीक है. सिग्मा x dy. ठीक है. ये देखें, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे ऊपर वाली मटेरियल में कंप्रेसिव स्ट्रेसेस और नीचे मटेरियल में होगा टेंसाइल स्ट्रेस. ठीक है. ऐसा ही है. तो अगर हम ऊपर सारे कंप्रेसिव स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को ऐड कर लें, टोटल स्ट्रेस को ऐड कर लें, देखें हर अगर ये यहाँ पे जो है ना वो बैलेंस नहीं हो रहा हुआ, यानी कि मूवमेंट क्रिएट हो जाएगा. ठीक है. अगर मूवमेंट क्रिएट हो गया तो फिर मटेरियल वहां पे रोटेट करना शुरू कर देगा. ठीक है. मटेरियल पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम में है. ठीक है. तो समीशन ऑफ सिग्मा xx हॉरिजॉन्टल, ये सिग्मा xx है. ठीक है. इससे पहले सिग्मा yy की बात हो रही थी. दिस इज सिग्मा xx. ऊपर वाली लेयर में कंप्रेसिव होगा, नीचे वाली लेयर में टेंसाइल होगा. और ये मैक्सिमम मिडिल क्रॉस सेक्शन पे, जितना आप लेफ्ट पे जाते जाएंगे ये स्ट्रेस कम होता चलेगा. और इस सरफेस पे स्ट्रेस सिग्मा xx वुड बी इक्वल्स टू 0 थ्रू आउट द थिकनेस. ठीक है. क्योंकि ये शेयर सपोर्ट है, प्योर शेयर सपोर्ट. अगर ये रिजिड सपोर्ट होती, वहां पे सिग्मा zz मिलता आपको. ठीक है. क्योंकि सरफेस जो बाउंड्रीज हैं वो उसको मटेरियल को रोटेट होने नहीं देती. तो मटेरियल बाउंड्रीज पे प्रेशर अप्लाई करता है. एज अ रिजल्ट मटेरियल विल फेस रिएक्शन इन दी x डायरेक्शन. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने आपको इंटेंशनली इस फेस को रोटेट करके दिखा और ये बताया कि यहाँ पे मूवमेंट जो है वो 0 है.
ठीक है, तो ये लेफ्ट और डायग्राम देख के कैसे पता चलेगा कि शेयर सपोर्ट है? ये यहाँ पे आपको प्रॉब्लम में गिवन है प्योर शेयर सपोर्ट, प्योर शेयर सपोर्ट गिवन है प्रॉब्लम में। ठीक है जनाब। अच्छा, एक बात समझ लें कि प्रॉब्लम की जो वैरायटी है, इसी प्रॉब्लम के अंदर से हम आपसे क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपको डिफरेंट प्रॉब्लम्स नहीं दे सकते आप। अगर आपको सिमिलर डिफरेंट प्रॉब्लम भी दे देंगे तो अंडर ग्रेड लेवल पे आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये एक पूरा रिसर्च पेपर होगा इसके पीछे, ठीक है। तो एक एक प्रॉब्लम के पीछे पूरा पूरा रिसर्च पेपर होता है, समटाइम पूरा पूरा मास्टर्स और जो है ना पीएचडी का जो है ना वो थीसिस होता है। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा आइडिया देना है कि एनालिटिकल प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होते हैं। सही है, तो यू वुड बी लिमिटेड टू वन ऑफ दिस प्रॉब्लम। आपको जरा सा भी हम डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं देंगे, हम आपको क्यू की वैल्यू चेंज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इस प्रॉब्लम को फुल प्रैक्टिस कर लिया, कंप्लीटली समझ लिया, यू कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम इफ दैट विल बी गिवन इन एग्जाम। अच्छा जी, हमने सारी बाउंड्री डिस्कस कर ली। हमने दो बाउंड्रीज तो डिस्कस करी नहीं है यहाँ पे। हमने लेफ्ट और राइट की बाउंड्री डिस्कस की है और टॉप और बॉटम की बाउंड्री डिस्कस की है। फ्रंट और रियर की बाउंड्री डिस्कस करी। कोई कमेंट करेगा इस बात पे? सर वो तो पैरेलल प्लेन्स है ना? हाँ, पैरेलल तो सारी हैं। यहाँ पे लोडिंग अप्लाई नहीं होगी। हाँ जी, पैरेलल तो सारी ही हैं। सही है, फ्रंट और सर रियर। इसकी थिकनेस बहुत कम है ना, जेड डायरेक्शन में कोई लोडिंग ही नहीं लग रही। अच्छा, थिकनेस कम हो या ज्यादा हो, फ्रंट और रियर बाउंड्रीज है, उस पर कोई एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है। सही है, तभी इस प्रॉब्लम को हम प्लेन अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं। अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे कि इसको प्लेन स्ट्रेस से करें या प्लेन स्ट्रेन से करें। ठीक है, फ्रंट और रियर की बाउंड्री पे एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, ना ही बॉडी फोर्सेस हैं, तभी हम इस प्रॉब्लम को प्लेन से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो बाउंड्री कंडीशन है ये क्वालिफाई कर रही है, तभी तो हम प्लेन प्रॉब्लम से कर रहे हैं। और वो जो कंडीशन है वो ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो गई। मैं तो दोबारा पीछे की तरफ जा रहा हूँ। ये जो कंडीशन आ रही है, ये बाउंड्री कंडीशन को इनकॉर्पोरेट करके तो आ रही है। तब सिग्मा एक्स एक्स इक्वल टू टॉ एक्स वाई इक्वल टू टॉ वाई जेड जीरो करके बनाई है। ठीक है, तो फ्रंट और रियर बाउंड्रीज जो है, यानी कि जो पैरेलल प्लेन्स हैं जिन पे एक्सटर्नल लोडिंग नहीं है, उनकी बाउंड्री कंडीशन हमने पहले ही इनकॉर्पोरेट कर दी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखने का जो है ना कोई जवाब नहीं है। अच्छा जी, अब सबसे रियल पार्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, ये वाले काम तो आप पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं। ये जो बाउंड्री कंडीशन लिखने वाली बातें हैं, ये आप फ्लूइड मैकेनिक्स 2 में और जो है वाइब्रेशन जो है ना मैकेनिकल वाइब्रेशन पे भी आप काम कर चुके हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो ये है कि हम कैसे एरीज स्ट्रेस फंक्शन को चूज करें। ठीक है, अगर आपने ये वाला 1 पेज समझ लिया, ठीक है, सो यू आर डन विद द इंटायर स्टोरी। जो बुरी खबर है वो ये है कि एरीज स्ट्रेस फंक्शन को बनाने के लिए, चूज करने के लिए कोई भी जो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका नहीं है। करना होगा, हमें बाउंड्री कंडीशन को एग्जामिन करना होगा और अपनी इंजीनियरिंग जजमेंट अप्लाई करनी होगी। ठीक है, तो पहली पहली कंडीशन, पहली ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि सिग्मा एक्स एक्स जो है हॉरिजॉन्टल स्ट्रेस इन एक्स डायरेक्शन जो है दैट इज सिमेट्रिक। ठीक है, जो लेफ्ट पे किसी पॉइंट पे होगा उतना ही स्ट्रेस के पॉइंट पे होगा। ठीक है, तो दिस इज, मैं दोबारा फिगर को ऊपर लेके जा रहा हूं। जितना स्ट्रेस यहां पे होगा एक्स डायरेक्शन में, उतना ही स्ट्रेस एग्जैक्टली यहां पे होगा। अगर नीचे किसी पॉइंट पे मैं बात करूं, जो जितना स्ट्रेस यहां पे होगा एक्स डायरेक्शन में, उतना ही स्ट्रेस सेम लोकेशन पे लेफ्ट साइड पे होगा। ठीक है, तो सिग्मा एक्स एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। ठीक है, अच्छा जी, सिग्मा एक्स एक्स को हम एरीज फंक्शन से सेपरेट करते हैं। कैन समवन कमेंट, एरीज फंक्शन से सेपरेट कैसे करते हैं सिग्मा एक्स एक्स को?
सर डबल डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू y। y से। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू y, विद रिस्पेक्ट टू y। तो जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या पावर पे कोई फर्क पड़ता है? भाई डबल डेरिवेटिव है ना, सिग्मा एक्स एक्स को एरीज स्ट्रेस फंक्शन से सेपरेट करने के लिए हम डबल डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो एक्स की पावर में कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। तो एक्स की पावर इवन होनी चाहिए एक्स सिग्मा एक्स एक्स के फंक्शन में। तो एरीज फंक्शन में कितनी होनी चाहिए एक्स की पावर? What should be the power of x in the Aries stress function? सर इवन होनी चाहिए। इवन नहीं होनी चाहिए क्योंकि x की पावर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सिग्मा एक्स एक्स को जब हम एरीज स्ट्रेस फंक्शन से सेपरेट करते हैं x की पावर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें सिग्मा एक्स एक्स के फंक्शन में x की पावर इवन चाहिए। इवन क्यों चाहिए? हाँ, इवन क्यों चाहिए? इवन इसलिए चाहिए कि उस फंक्शन में मैं x की वैल्यू पॉजिटिव पुट करूं या फिर नेगेटिव पुट करूं, मुझे आंसर सेम चाहिए। ये मेरी पहली ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि सिग्मा एक्स एक्स इज एन इवन फंक्शन ऑफ एक्स। लेफ्ट पे और राइट पे वैल्यूज बराबर होनी चाहिए सिग्मा एक्स एक्स की। तो मैं एक्स की वैल्यू -1 पुट करूं या +1 पुट करूं, -1.1 प्लेस करूं या +1.1 प्लेस करूं, आई शुड गेट द सेम। एंड हाउ कैन आई गेट द सेम नंबर विथ इवन पावर? क्योंकि इवन पावर के अंदर जो है ना वो कैपेसिटी है कि वो नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देती है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये पहली ऑब्जर्वेशन है कि सिग्मा एक्स एक्स शुड बी इवन फंक्शन ऑफ एक्स एंड subsequently the Aries stress function should be an even function of x, ठीक है। now let's come to the sigma yy। अदर वे अराउंड है, ये बिल्कुल उल्टा है। सिग्मा वाई वाई जो है वो ऊपर कितना है, ऊपर वाली लेयर पे कितना है सिग्मा वाई वाई? -q। और सिग्मा वाई वाई नीचे वाली बाउंड्री पे कितना है? 0, यानी सिमेट्रिक नहीं है ये। यानी कि अगर हम +h/2 प्लेस करते हैं, पुट करते हैं तो आंसर डिफरेंट आता है, माइनस पुट करते हैं तो आंसर डिफरेंट आता है, ठीक है। तो डिफरेंट करने के लिए सिग्मा वाई वाई का जो फंक्शन है उसमें y की पावर जो है वो ऑड होनी चाहिए। आंसर को डिफरेंट करना है ना, अगर +h/2 प्लेस करें तो आंसर डिफरेंट आना है, -u आना चाहिए। और अगर -h/2 पुट करें तो आंसर 0 हो जाए। तो ऐसा तो उस वक्त होगा कि जब पावर हो, क्योंकि इवन पावर नेगेटिव साइन के अफेक्ट को ले लेगी, ऑड पावर नेगेटिव साइन के अफेक्ट को खत्म कर देगी, ठीक है। अच्छा, सिग्मा वाई वाई ऑड के अंदर y की पावर ऑड होनी चाहिए। एरीज फंक्शन में कितनी होनी चाहिए y की पावर? व्हाट वुड बी द पावर ऑफ y इन द एरीज स्ट्रेस फंक्शन? पहले तो ये बताएं कि एरीज स्ट्रेस फंक्शन से सिग्मा वाई वाई को अलग कैसे करते हैं? डबल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो y की पावर पे कितना फर्क पड़ता है? नथिंग, कुछ नहीं। नथिंग, ठीक है। तो सिग्मा वाई वाई के अंदर x y की पावर ऑड है, तो एरीज फंक्शन में भी y की पावर ऑड होनी है, ठीक है। तो अब ये सेकंड ऑब्जर्वेशन आ गई। देखिए अब आपको एरीज स्ट्रेस फंक्शन की इंपॉर्टेंस का पता चल रहा होगा। अगर हम इंडिविजुअली सिग्मा एक्स एक्स का फंक्शन अलग बनाते और सिग्मा वाई वाई का फंक्शन अलग बनाते तो हम सही फंक्शन नहीं बना सकते थे। अब हमने क्या किया, एरीज फंक्शन बना रहे हैं जिसमें तीनों फंक्शन कंबाइन है, ठीक है। तो तीनों तरफ से चेक एंड बैलेंस है, ठीक है जनाब। अच्छा जी, अब ये फाइनल कंडीशन है। फाइनल कंडीशन क्या है कि अपर बाउंड्री और लोअर बाउंड्री पे सिग्मा वाई वाई की वैल्यू कितनी है? अपर बाउंड्री पे सिग्मा वाई वाई की वैल्यू कितनी है? -q कांस्टेंट। -q, और ये कांस्टेंट है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट। हम x की कुछ भी वैल्यू पुट करें हमें -q मिलना चाहिए। इसी तरह लोअर बाउंड्री पे हम x की वैल्यू कितनी भी पुट करें, हमें लोअर बाउंड्री पे सिग्मा वाई वाई कितना मिलना चाहिए? 0, ठीक है। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ x, sigma yy is constant at upper boundary and lower boundary,
ठीक है, तो सिग्मा वाई वाई शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सिग्मा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स करने के लिए हमें जरूरी है कि एरीज स्ट्रेस फंक्शन जो है उसमें एक्स की पावर मैक्सिमम 2 हो, क्योंकि जब हम सिग्मा वाई वाई को अलग करेंगे स्ट्रेस फंक्शन से तो हमें इसको 2 दफा एक्स के रेस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करना होगा, और 2 दफा डिफरेंशिएट करने के बाद जो फंक्शन बनना चाहिए सिग्मा वाई वाई का वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स बनना चाहिए। तो एरीज स्ट्रेस फंक्शन मे हैव वैल्यू पावर ऑफ एक्स बट नो मोर देन 2। ठीक है, अब इस कंडीशन इन 3 ऑब्जर्वेशंस को सामने रखते हुए हमने ये सारे के सारे टर्म्स जो है ना वो चूज कर लिए। इसमें जो पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल है वो क्यों नहीं इंक्लूड किया, पहला वाला पॉलिनोमियल? सर वो कोई स्ट्रेस नहीं देगा। हाँ, वो तो किसी स्ट्रेस स्टेट को रिप्रेजेंट नहीं करता। ठीक है, तो वो हमारे लिए यूजलेस है, इसलिए हमने स्टार्ट ही पॉलिनोमियल 2 से किया है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अच्छा, ये 6, 7, 8 तक भी जा सकते हैं, पॉलिनोमियल में भी जा सकते हैं। हमने अपने आप को लिमिट किया है 5 तक। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसका बाउंड्री कंडीशन ही नहीं है, हम इससे ज्यादा एक्यूरेट बात ही नहीं कर सकते। ठीक है, हमने इससे कम क्यों नहीं रखा? इससे कम इसलिए नहीं रखा कि फिर जो है ना वो इनएक्यूरेसीज आ जाएंगी। ठीक है, तो हमने जितनी मैक्सिमम बाउंड्री कंडीशन है उनको इस्तेमाल करते हुए हमने 5th डिग्री पॉलिनोमियल तक जो है वो चूज किए हैं अपनी टर्म्स को। ठीक है जनाब, कितनी टर्म्स आ रही हैं इस तरह की? एक्स की पावर इवन नो मोर देन 2, दिस टर्म वुड बी इंक्लूडेड, दिस टर्म वुड बी इंक्लूडेड, दिस टर्म वुड बी इंक्लूडेड, दिस, because these terms are qualifying the observation। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं। चले जी, एरीज स्ट्रेस फंक्शन बन गया। अब इसमें कितनी टर्म्स आ रही हैं? 1 2 3 4 5। हाउ मेनी अननोन्स? 1 2 3 4 एंड 5 अननोन्स। ठीक है, तो अब ये अननोन्स की वैल्यू कैसे पता चलेगी? कैन समवन कमेंट? बाउंड्री कंडीशन लगा के। एग्जैक्टली, बाउंड्री कंडीशन लगा के, और ये काम आप पहले भी बहुत दफा कर चुके हैं। चलिए जी, सबसे पहला स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप पे हमने चेक करनी है कंडीशन, स्ट्रेस कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन। जब हमने स्ट्रेस कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन लगाई इस फंक्शन पे, तो हमें पता ये चला कि ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, लेफ्ट साइड और राइट जो है ना वो बराबर नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें से ये चीज तो जीरो नहीं हो सकती, 24 इक्वल्स टू 0 तो नहीं, ये तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो क्या चीज जीरो हो सकती है? ये राइट वाला फैक्टर, ये फैक्टर जो है ये जीरो हो सकता है, 24 जीरो नहीं हो सकता। आप चाहें तो ये कह लें कि 24 को दूसरी तरफ ले जाके हमने जीरो कर दिया, लेकिन सही बात ये है कि 24 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0, दिस फैक्टर कैन बी इक्वल्स टू 0। तो हमने इसको फोर्सफुली जीरो किया और हमने एक कांस्टेंट को, एक कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दिया। हमने f5 को इन टर्म्स ऑफ d5 डिफाइन करके वापस एरीज स्ट्रेस फंक्शन में प्लेस कर दिया। if you apply the stress competibility equation, this condition again, then the function would be satisfied। तो इससे पता ये चला कि आपने जो एरीज स्ट्रेस फंक्शन बनाया है वो बिल्कुल सही बनाया है। Now you can proceed and separate your individual functions। ठीक है, जो अभी आपको से प्रॉब्लम कराए थे ना, प्रॉब्लम्स ऊपर करवाए थे। ठीक है, तो इसमें तो एरीज फंक्शन गिवन था, यहाँ पे एरीज फंक्शन गिवन नहीं था, तो आपने एरीज फंक्शन बनाया पहले। अब जब बन गया एरीज फंक्शन और वो कंडीशन को भी क्वालिफाई कर गया, नाउ यू कैन सेपरेट दीज फंक्शंस। सिग्मा एक्स एक्स को सेपरेट कर लें, सिग्मा वाई वाई को कर लें, टॉ एक्स वाई को कर लें। ये 3 फंक्शन आ गए। अब इन तीनों फंक्शंस पे आप बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते चलाएं एक एक करके, तो आपके पास कोफिशिएंट पता चल गया। हाँ जी, कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता चल गई, तो आपका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर फाइनली। अब ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। जो टेक होम मैसेज है, एक और जो टेक होम मैसेज है वो ये कि एनालिटिकल सॉल्यूशन इज ए कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लेफ्ट से राइट, टॉप से बॉटम ऑब्जेक्ट के किसी भी पॉइंट के कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस निकाल सकते हैं।
ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट के आप सिर्फ x और y की वैल्यू प्लेस करें, यू कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ सिग्मा x सिग्मा y एंड y। तो हमें इंटरेस्ट किस में होता है, कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस में होता है या प्रिंसिपल स्ट्रेसेस में होता है? प्रिंसिपल प्रिंसिपल स्ट्रेस। हाँ जी, बिल्कुल सही है, प्रिंसिपल स्ट्रेस में होता है। लेकिन स्ट्रेस निकालने से पहले आपके पास कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेस होने चाहिए। जो मैं चैप्टर 1 से मैं और चैप्टर 2 में कहते थे ना कि अज्यूम दैट वी नो द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस, तो वो कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस अब पता चले कि कैसे ड्राइव होते हैं। ठीक है, चैप्टर 1 में आपको डायरेक्टली कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस दिए हुए थे सिंगल पॉइंट के। अब आपके पास पूरा फंक्शन आ गया, पूरी फील्ड आ गई, इसमें आप कोऑर्डिनेट प्लेस करें, आपको उस स्पेसिफिक पॉइंट्स के आपको कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस पता चल जाएंगे। एंड वंस यू नो द कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ स्ट्रेसेस, यू कैन डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। फ्रॉम द प्रिंसिपल स्ट्रेसेस यू कैन एबल टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल स्ट्रेन। ठीक है, तो बस दो ही तो चीजें चाहिए होती हैं आपको, स्ट्रेसेस को, मैक्सिमम स्ट्रेसेस को स्ट्रेंथ से कंपेयर करते हैं और डिफॉर्मेशन को अलाउबल डिफॉर्मेशन से कंपेयर करते हैं, और उसके बाद कमेंट कर देते हैं कि डिजाइन जो है वो सेफ है या नहीं है। अब इस प्रॉब्लम को आप जरा खुद से सॉल्व कीजिएगा अपकमिंग वीक में, और अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा। इट्स टाइम टू टेक द अटेंडेंस। ऑलराइट सर। Please write down your seat number only your seat number. If anyone doesn't किसी ने अभी तक नहीं लिखा है तो प्लीज जो है ना वो अपना सीट नंबर मेंशन कर दें यहाँ पे। आफ्टर मुझे नाम नहीं चाहिए, राइट योर नेम, जस्ट सीट नंबर। ठीक है, डेटा प्रोसेस करने में मसला होता है, फिर आपका नाम आपकी आईडी से आ रहा है। Only type your seat number and later you can check out from the class. You may check out from the class after typing the seat number in the chat area. Thank you. Thank you for your patience. Thank you for your patience. Please check out from the class. Check out from the class. I am going to stop its. Bilal Ashraf, Minhaj, Adnan, Sajawal, Kamar, please check out from the class. Taha, Danish, Saad.